Most of the conferences are like that, but still we have very good audience and very knowledgeable and very elite audience. So don't go by the quantity, go by the quality. People like Lagari Saab, Meher Saab, Ashok, Jitoi Bhai, Bodla Saab, they are themselves institutions. They're not just persons, they are institutions. Anyway, so we have a very interesting session today on update on visual fields, in which the first part will be, I will be presenting it, and I will be talking on the fundamentals of visual field analysis, step by step interpretation. And then Yusuf Jamal Masood will be talking on the some of the newer techniques of visual field examination and interpretation. So I start. Can you put the mic presentation on? So, dear audience, you're all well aware the importance of visual fields in glaucoma diagnosis. Visual field is actually the functional assessment of the retinal nerve fiber layer and the receptors, that how much functioning they are doing and what damage has been done because of the glaucoma changes. This damage is interpreted in the form of visual field changes, which represent the nerve fiber layer damage, and they have specific patterns. And the specific patterns help us in identifying the different types of scotomas or damages, and also we are able to differentiate it from the neurological damage that is happening in the visual field. This is the new place that I am working nowadays, Akhtar Saeed Medical and Dental College, Lahore. And this was my past where I stayed for 20 long years. I joined as associate, then professor, then HOD, and finally as principal of Allama Iqbal Medical College. And glaucoma is a group of disorders characterized by typical glaucomatous optic neuropathy, which is clinically manifested by characteristic visual field changes, which we are going to talk about today, with normal or raised IOP. Perimetry is an attempt to assess visual threshold at a particular location in the visual field. And the visual threshold, what is the visual threshold? It's the minimal level of light that can be perceived at a given location in the visual field, and it's also called as retinal sensitivity. Visual threshold varies from place to place and in the visual field, and it decreases towards the periphery. Its maximum in the center, and it decreases towards the periphery. Superiorly, it is limited by the eyebrow, and it's only 60 degrees. Nasally, it is limited by the nasal bridge, it's 60 degrees. Inferiorly, it is limited by malar bone, and is 75 degrees. And temporally, there is nothing to limit it. That's why it is 100 degrees. And this all is called as hill of vision. And you can see in this picture, the fovea is at the top. And as we move towards the periphery, the sensitivity decreases. Maximum sensitivity lies at the top, which is the fovea centralis. Now, there are different types of perimetry. One is the kinetic, and second is the static. The kinetic perimetry is the manual perimetry. आपको याद होगा वो पुराने वक्तों में एक जैरम स्क्रीन होती थी, काले रंग का पर्दा, जिसके ऊपर पेशेंट को 2 मीटर दूर बिठा के या 1 मीटर दूर, डिपेंड करता है उस पर्दे का साइज़ क्या है, उसको कहा जाता था एक सफ़ेद बटन की तरफ देखो और एक काले रंग की रॉड जिसके ऊपर एक सफ़ेद टारगेट होता था, छोटा सा 2 मिलीमीटर का या 1 मिलीमीटर का, मुख्तलिफ टारगेट साइज़ अवेलेबल थे. वो आप पेरीफ्री से मूव करते थे और पेशेंट ने बताना होता था कि कब वो उसको नज़र आना शुरू हुआ. तो आप उसके ऊपर कपड़े के ऊपर पिन्ने लगाते जाते थे और अल्टीमेटली एक चार्ट ड्रॉ करते थे. उसी तरह का चार्ट आपके पास पेपर होता था. इसको जैरम स्क्रीन कहते थे, और क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रही होती थी इसलिए इसका नाम काइनेटिक है. अब जो नई चीज़ आई है उसमें मूवमेंट नहीं है, थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है. कम ज़्यादा लाइट से कम लाइट की तरफ लेके जाता है, कम लाइट से ज़्यादा लाइट की तरफ लेके जाता है. तो इसलिए वो स्टैटिक थ्रेशोल्ड पेरीमेट्री उसको कहते हैं. स्टैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पॉट अपनी जगह से चेंज नहीं होता,
मूव नहीं करता। नया स्पॉट आप किसी और जगह पे देख सकते हैं, लेकिन वो जो स्पॉट जिसको टेस्ट किया जा रहा है दैट विल नॉट मूव, इसलिए वो काइनेटिक नहीं है। इसमें हम टेस्ट टारगेट को मूव कर रहे थे जैरम स्क्रीन में, इसलिए इसको काइनेटिक कहते हैं और दूसरे को स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक, जैसे मैंने पहले बताया, इट प्रेजेंट्स अ विजुअल स्टिमुलस इन वेरिंग साइजेस एंड इंटेंसिटीज at fixed locations, and higher intensity stimuli are presented, and then gradually the intensity is lowered until the patient can no longer perceive the stimulus, and this is called as visual threshold in that particular area. अब दोनों का डिफरेंस, what is the difference between kinetic and static? अब जो kinetic है, in this kinetic perimetry you can assess the length and breadth of scotoma, but you cannot assess the depth of scotoma, how deep that scotoma is. So length and breadth can be done with the kinetic, which is an older technique, and depth also. ये देखें, इसके अंदर length और breadth तो बताएगा ही, साथ ये भी बताएगा कि ये partial है, ये complete है, incomplete है, congruous, incongruous, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं ज़्यादा static से। अब ये हम्फ्री फील्ड एनालाइजर की जो स्टैटिक पेरीमेट्री है उसका इस तरह का प्रिंट आउट होता है ये, और आप इसमें देख सकते हैं राइट आई, लेफ्ट आई इस तरह से डिस्क्राइब्ड होती है। इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जिनको मैं वन बाय वन आपसे प्रेजेंट करूंगा और डिस्कस करूंगा। मुख्तलिफ किस्मों के जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स दैट वी सी इन ग्लोकोमा, दे आर द जनरलाइज्ड रिडक्शन इन सेंसिटिविटी, टेम्पोरल वेज, नेजल स्टेप, पैरासेंट्रल स्कोटोमा, arcuate scotoma, double arcuate scotoma, bearing of the blind spot, total loss of field except central 5 to 10 degrees or temporal island, and finally the total loss of field and vision. अब ये सारे जो है ना, they have a relationship with the arrangement of the nerve fiber layer. All the nerve fibers, they travel directly to the optic nerve on the nasal side, whereas they arch above and below on the temporal side, leaving the central fibers macular area without any nerve fiber layer. Exactly वो जो फोविया और उसका वो जगह है वहाँ पे उस तरह से वो बंडल्स नहीं हैं, अगर हैं भी तो वो बहुत कम है, जिसकी वजह से उसका पैटर्न इस तरह का है। तो वो आर्कोइड पैटर्न है, तो फिर आर्कोइड स्कोटोमा बनेगा, और जिस तरह का पैटर्न फाइबर्स का होगा उस तरह स्कोटोमा बनेगा, और उस पैटर्न that helps us in identifying that these are glaucomatous defects. Now this is the same thing that I was mentioning कि ये जो nasal fiber है ये डायरेक्ट आ रहे हैं, और जो है टेम्पोरल है वो आर्च कर रहे हैं, ठीक है, और उसी तरह से स्कोटोमास बन रहे हैं। जहाँ पे नर्व फाइबर लेयर डैमेज होगी उस तरह से ही स्कोटोमा उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर आ जाएगा। टेम्पोरल वेज जो होगा उसमें देखें कि अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब विजुअल फील्ड को इंटरप्रेट करें तो आपका जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो मैच करनी चाहिए उसके साथ। इसी तरह ओसीटी है कि अगर ओसीटी में चेंजेस आ रही हैं तो देट शुड बी मैचिंग विद योर क्लिनिकल फाइंडिंग्स सो दैट द इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट। सिर्फ क्लिनिकल फाइंडिंग्स के साथ आप डायग्नोज कर सकते हैं, बट वी नीड कंफर्मेशन ऑफ दैट with the help of visual fields and OCT, and that is also required to stage the disease कि पेशेंट की जो डिजीज़ है वो किस स्टेज पे है, इज़ इट अर्ली, मॉडरेट, एडवांस, वटेवर। तो इसी तरह आप देखेंगे कि जो इसमें डैमेज नज़र आएगा आपको ओसीटी में, फंडस फोटोग्राफ में और ओसीटी में, वो कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए विद द विजुअल फील्ड डैमेज। सिमिलरली अर्ली सुपीरियर नेजल स्टेप डिफेक्ट, तो इस जगह पे डिफेक्ट आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग विजुअल फील्ड पे भी डिफेक्ट आ रहा है। तो इसी तरह ये इसमें देखेंगे एडवांस सुपीरियर नेजल स्टेप डिफेक्ट, उसके बाद टोटल लॉस ऑफ फील्ड ऑफ विजन विद प्रिजर्वेशन ऑफ सेंट्रल आइलैंड, सेंट्रल टनल। तो डिस्क पे भी आप देख रहे हैं ओसीटी में सारा अफेक्ट हो गया, सिर्फ रिम थोड़ा सा रह गया, तो उसके मुताबिक ही सारा डैमेज हुआ हुआ है और बीच में सिर्फ एक आइलैंड ऑफ विजन रह गया। तो क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ पेरीमेट्री वी नीड इट फॉर द डायग्नोसिस व्हेन देयर इज रेज इंट्राओकुलर प्रेशर और द डिस्क लुक्स सस्पिशियस, एंड इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री और इफ देयर इज पेशेंट इज मायोप beyond -3 or 4, and management also we need visual fields for the monitoring of glaucoma. अब ये जो मैंने बताया था कि ये हम्फ्री फील्ड एनालिसिस की रिपोर्ट है, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बता देता हूँ।
कि इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इंटरप्रिटेशन जो है वो ऊपर से शुरू होनी चाहिए और एकदम से आपने ग्रे स्केल पे नहीं जाना, ना न्यूमेरिक स्केल पे जाना है। पहले आपने देखना है कि ये रिपोर्ट किसकी है, कब हुई है, किस टेक्निक से हुई है, कितना टाइम लगा है और इसमें जो इसकी रिलायबिलिटी इंडिसेस हैं वो क्या हैं। तो सिंगल फील्ड एनालिसिस है क्योंकि एक कंपोजिट फील्ड एनालिसिस भी होता है जिसमें एक ही पेज पे पेशेंट की जो डिफरेंट टाइम्स पे किया जाता है वो आपको मशीन प्रिंट आउट दे देती है कि 6 महीने पहले वाला ये, साल पहले वाला ये और आज का ये। तो आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि प्रोग्रेशन हो रही है या नहीं हो रही। फिर पेशेंट की आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे नज़दीक ये है और यही हमारी कौम की सबसे चीज़ कमज़ोर है कि अक्सर लोगों को ना अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता है, पता भी है तो वो होनी को 30-35 साल ये ख्वातीन फरमा देती हैं। अब तो मर्द भी फरमाने लग गए हैं, मर्द भी फरमाने लग गए हैं। वो भी अब पहले अपनी तनख्वाह छुपाते थे, अब उम्र भी छुपा रहे हैं। तो वो क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है ना, दिस इज़ एज मैच्ड नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ कंपेरेबल है। आई विश कि मेरी ऑडियंस में कोई रेजिडेंट्स भी आ जाते क्योंकि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ वो सारे मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनको क्यों पढ़ा रहा हूँ। इन्हें सारा आता है पहले ही। 12 रिफ्रेशर के तौर पे लें इसको और सीरियसली लें। तो ये डेट ऑफ बर्थ डालनी इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि जिस पेशेंट का हो रहा है, आप पेशेंट है 18 साल का, उसको 60 साल के साथ मैच करेंगे तो कभी भी रिपोर्ट आपकी रिलायबल नहीं होगी क्योंकि मशीन ने एज मैच के साथ करना है। तो इस तरह 60 वाले को अगर आप 18 साल से करेंगे तो तब भी वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ या एज डालनी बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि कौन सी आपने टेक्निक यूज़ की, सेंट्रल 24-2 थ्रेशोल्ड टेस्ट, ये आपने किया। आप 24-2 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर फिक्सेशन आपने टारगेट कौन सा यूज़ किया, ब्लाइंड स्पॉट। फिर फिक्सेशन टारगेट सेंट्रल है। फिक्सेशन लॉसेस कितने हैं, ये 10-20% तक अगर हो तो इनको समझा जाता है कि ये रिपोर्ट रिलायबल है। फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है कि पेशेंट ट्रिगर हैप्पी है, वो देख ही नहीं रहा क्या नज़र आ रहा क्या नहीं आ रहा, वो बटन दबाई जा रहा है टकाटक, जिस तरह वीडियो गेम खेलते हैं तो इस तरह से वो कर रहा है, तो जिसमें उसकी रिलायबिलिटी डाउटफुल होगी। फॉल्स नेगेटिव ये है कि मशीन ने एक जगह पे टारगेट दिखाया था, पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया था, नेक्स्ट टाइम मशीन ने चेक करने के लिए दोबारा दिखाया तो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसका क्या मतलब है कि या तो वो फटीग हो गया है, या वो एब्सेंट माइंडेड है, या इनअटेंटिव है और उसको पता नहीं चल रहा दोबारा और वो दबा नहीं रहा, तो इसलिए वो फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट ड्यूरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 7 मिनट्स 21 सेकेंड। तो अगर बहुत देर लग रही है मशीन को, इसका मतलब ये कि पेशेंट उतना रिलायबल नहीं है और वो बार बार टेस्ट कर रही है मशीन। 7 to 8 मिनट्स नॉर्मल समझी जाती है जो रेंज है, इससे ज़्यादा हो तो फिर हम उसको सस्पिशियस समझते हैं और फिर टेस्ट को रिपीट करते हैं। और फोविया ऑन ऑफ का भी मतलब यही होता है कि अगर आपने सेंट्रल करना है तो आप फोविया को ऑन रखेंगे, अगर आपने ज़्यादा पेरिफेरी चेक करनी तो फोविया ऑफ भी कर सकते हैं। फिर स्टिमुलस साइज़ है, ये साइजेस जो हैं ये गोल्डमैन जो था ना फील्ड एनालाइजर, उससे लिए गए हैं। ये 3 और कलर भी इनका वाइट है। उसके बाद थ्रेशोल्ड क्या है और ये क्या है, हाँ जी विजुअल एक्यूटी, हाँ जी स्टिमुलस साइज, ये बाकी स्ट्रेटजी हो गई। फिर प्यूपल डायमीटर, विजुअल एक्यूटी और रिफ्रैक्टिव एरर। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम इसके निचली ग्लोबल इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो उस टाइम पे इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर देखें ना कोई पेशेंट है पाइलोकार्पिन पे, प्यूपल उसका कंस्ट्रिक्टेड है, साथ उसको लेंस ओपेसिटी भी है, ठीक है, और साथ ग्लाकोमा भी है। तो अब 2 चीज़ें जो है ना बीच में उसके स्टिमुलस को रोकेंगी, एक प्यूपल साइज और एक लेंस ओपेसिटी। तो वो रिस्पॉन्स उसकी उस तरह से नहीं आएगी जितनी कि नॉर्मल साइज प्यूपल में और क्लियर मीडिया के अंदर आती है, ठीक है। तो उस ये आप अगर एंटर करेंगे तो मशीन इस चीज़ को भी कंसिडर करके तो आपको रिपोर्ट देगी। उसके बाद डेट आ गई है, टाइम आ गया है। टाइम भी कहते हैं कि फ्रेश जब पेशेंट हो मॉर्निंग आवर्स में आप उसका करें, और रात को शाम को अपने कारोबार से आया थक आके और उसको विजुअल फील्ड पे बिठा दिया आपने, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन सही हो सके। अच्छा, उसके बाद आ गया जी ग्रे स्केल, जिसपे हम एकदम जंप करने की कोशिश करते हैं। ग्रे स्केल में आप देखेंगे कि डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ये लाइट पैटर्न है, ये उससे डार्क है, ये उससे डार्क है, ये उससे डार्क है और ये बिल्कुल डार्क है। ये लेवल ऑफ डैमेज जितना नर्व फाइबर लेयर का हुआ है उसके हिसाब से मशीन ने जो इंटरप्रेट किया है
उसने उसका ग्रे स्केल दिखा दिया है। और ब्लाइंड स्पॉट भी जो है वो डार्क आएगा, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट जहाँ ऑप्टिक नर्व होती है वहाँ फोटो रिसेप्टर नहीं होते और ना ही वहाँ पे नर्व फाइबर लेयर होती है, इसलिए वो एरिया डार्क आता है। और इसी का जो न्यूमेरिक स्केल है वो ये है। और आप देखेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे थ्रेशोल्ड बहुत लो है, 2 और 4 है, जहाँ उससे बेहतर है वो 29। और ये इसी का, इस ग्रे स्केल का ही न्यूमेरिक इंटरप्रिटेशन है इस 24 डिग्रीज के अंदर अंदर। और ये जो कोन है दिस रिप्रेजेंट्स द ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ये हो गया जी फर्स्ट हाफ ऑफ द रिपोर्ट जो अपर हाफ है। इसके बाद हम चलते हैं इसके निचले हिस्से पे। निचले हिस्से पे आप देखें कि ये जो टोटल डेविएशन का क्या मतलब है। टोटल डेविएशन का मतलब ये है कि जो ये आपका न्यूमेरिक स्केल था ऊपर वाला, इसमें एज मैच नॉर्मल पॉपुलेशन से पॉइंट टू पॉइंट कितना डिफरेंस आ रहा है फ्रॉम एज मैच नॉर्मल पॉपुलेशन पेशेंट का। फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्पॉट को लेते हैं, इस स्पॉट को, ये आ रहा है जी ऊपर आ रहा है ये 30, ये 30 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ -2 इधर लिखा है, तो इसका मतलब ये कि ये पॉपुलेशन से सिर्फ 2 डेसिबल्स कम है। इसका मतलब ये इतना बैड नहीं है। और हम यहाँ देख भी रहे हैं कि ये वाला पैटर्न भी एक रिलेटिवली हेल्दी पैटर्न है। हेल्दी पैटर्न, उसका न्यूमेरिक स्केल ये, और ये इसका डिफरेंस है फ्रॉम द एज मैच नॉर्मल पॉपुलेशन। तो ये टोटल डेविएशन प्लॉट का मतलब ये है कि पॉइंट टू पॉइंट जो उसने ये निकाला था न्यूमेरिक पैटर्न, उसको उसने एज मैच नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपेयर करके, और जितना जितना जहाँ डिफरेंस आ रहा था, यहाँ अगर देखें ना इस पिछली तस्वीर में ये जो एरिया डार्क है, ये यहाँ पे थ्रेशोल्ड बहुत कम है, 4 है। तो जब इसको आप देखते हैं तो ये देखें कि यहाँ पे आ रहा -23, तो इसका मतलब ये कि ये एज मैच नॉर्मल पॉपुलेशन से 23 डेसिबल्स कम है। ठीक है, तो ये आ गया टोटल डेविएशन प्लॉट। उसके बाद आ गया पैटर्न डेविएशन प्लॉट। पैटर्न डेविएशन प्लॉट का मतलब ये है कि वो जो ऊपर 3 चीज़ें दिखाई थी ना, प्यूपिल डायमीटर, लेंस ओपेसिटी एंड रिफ्रैक्टिव एरर, उसको भी इसके अंदर से मिनहा कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। और मशीन ने इसके अंदर से वो चीज़ें निकाल के यहाँ पे फाइनल दे दिया है कि ये है वो डेविएशन फ्रॉम एज मैच नॉर्मल पॉपुलेशन, जो पेशेंट की रूटीन के जो इसका जो पैटर्न था या न्यूमेरिक पैटर्न था उससे डिफरेंट है। तो अगर आपने प्यूपिल साइज नहीं डाला, आपने लेंस ओपेसिटी नहीं डाली, आपने रिफ्रैक्टिव एरर नहीं डाला, तो फिर ये कैसे सही आएगा? ये नहीं आ सकता सही। इसलिए मैंने जैसे अर्ज़ की शुरू में कि ऊपर का हिस्सा सारा पढ़ना और इंटरप्रेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो जब पढ़ लें और देख लें कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, उसके बाद आएँ आप ग्रे स्केल पे, न्यूमेरिक स्केल पे, और उसके बाद टोटल डेविएशन, पैटर्न डेविएशन, फिर ग्लोबल इंडिसेस। एक कमेंट मशीन ऑटोमेटिक देती है कि विद इन नॉर्मल लिमिट्स है या आउटसाइड नॉर्मल लिमिट्स है। वो मशीन ने अपर हाफ और लोअर हाफ को कंपेयर करके देना होता है और नॉर्मल एज मैच पॉपुलेशन से कंपेयर करके देना होता है। फिर आ गया जी आपका मीन डेविएशन। अब इस सब की एवरेज निकाल के या उसका मीन निकाल के मीन डेविएशन आ गया, और पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका मीन डेविएशन ये आ गया और इसका मीन ये आ गया। तो ये दोनों का मीन भी निकाल दिया। तो अगर आपकी सारी रिपोर्ट रिलायबल है तो अब ये वो चीज़ है जिससे आप पेशेंट की प्रोग्नोसिस को और फॉलोअप को मैनेज करेंगे। कि अब जब आपने अगली रिपोर्ट कराई और वो भी सब ऊपर के सारे पैरामीटर ठीक थे, एज भी सही थी, सब कुछ ठीक था, फिर आप ये देखेंगे कि मीन डेविएशन में और पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना फ़र्क पड़ा है पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में। जब आप अगली रिपोर्ट करवाएंगे तो उन दोनों रिपोर्टों को आप इससे कंपेयर करेंगे। असल ये चीज़ है ग्लोबल इंडिसेस, ग्रे स्केल नहीं है। ग्रे स्केल को आप उस तरह से अच्छी तरह इंटरप्रेट कर भी नहीं सकते कि रंग उसमें आ रहा है कहीं पे काला, कहीं ग्रे, कहीं लाइट। असल जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। उसके बाद आ गए हैं जी आप नीचे, ये पी वैल्यू के हिसाब से ये ग्राफिकल पैटर्न है और इसका स्केल ये सबसे नीचे दिया हुआ है, जिसमें आपको पता ही है पी वैल्यू अगर इस 0.5 हो या उससे कम तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है कि वो पॉपुलेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दैट डिजीज़ इन दी नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन है। तो जितनी वैल्यू कम होगी उतनी उसकी जो पी वैल्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी और ज़्यादा होने पे वो नहीं इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये इस तरीके से आप
इस रिपोर्ट को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इंटरप्रेट करते हैं. एंड important things to remember is that diagnosis of glaucoma requires, if not high, at least optimum index of suspicion. अगर आप हाई रखेंगे तो आप हर दूसरे पेशेंट को ग्लोकोमा कहना शुरू हो जाएंगे. ज़रा सी जिसकी डिस्क आगे पीछे है आप शक में पड़ जाएंगे. लेकिन आपने सिर्फ डिस्क नहीं देखनी, आपने प्रेशर भी देखना है, आपने एंगल भी देखना है, आपने CCT भी देखनी है. उसके बाद आपने ये टेस्ट भी कराने हैं, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग डायग्नोसिस है. मैं मरीज़ को ये समझाने के लिए कहता हूँ कि जिस तरह शुगर और ब्लड प्रेशर है कि एक दफ़ा हो गई तो बस हो गई, फिर उसके बाद आप उसकी इलाज करते रहेंगे, दवाइयाँ खाते रहेंगे, टेस्ट करवाते रहेंगे. इसमें भी इस तरह ही होगा. तो इससे आपकी फिर जान छूटनी नहीं है, बेशक ऑपरेशन हो भी जाए. डॉक्टर साहब इसका कोई ऑपरेशन नहीं है. ऑपरेशन करने के बाद भी आपकी दवाइयों से और चेकअप से जान तो नहीं छूट जाती. तो फेको की तरह तो नहीं है ना कि एक दफ़ा फेको करा लिए. एक पेशेंट ऐसा भी है कि एक कैटेगरी है कि फेको करा के गया, पट्टी खुला के गया या पट्टी लगी नहीं थी, उसके बाद कभी आया ही नहीं. खुद ही कतरे डाल डूल के 2-3 हफ्ते बाद खुद ही बंद कर दिए, ना किसी से पूछा. डॉक्टर साहब कोई तकलीफ़ ही नहीं थी. मतलब ठीक है, अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन चेकअप की जो डेट दी जाए वो तो इम्पॉर्टेंट होती है ना. लेकिन ग्लोकोमा वाले पेशेंट भी इस तरह मिस करते हैं अपनी अपॉइंटमेंट्स. तो इसलिए कहने का मतलब ये कि एक ऑप्टिमम इंडेक्स होगा तो आप डिस्क को देखेंगे गौर से. पेशेंट की प्रेशर भी मेजर करेंगे जब वो एज 40 एंड अबव है. अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, मायोपिया है, तो उसको यंग एज में भी कर सकते हैं हम. उसके बाद है जी, पेशेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लेवल्स ऑफ विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स एंड विजुअल एक्यूटी कैन अंडरगो विजुअल फील्ड टेस्टिंग. ये भी एक मिथ है कि जी अगर वो काउंटिंग फिंगर है या वो हैंड मूवमेंट है तो उसका नहीं हो सकता. आप टारगेट साइज़ बड़ा करके, आप इंटेंसिटी को ज़्यादा करके, अगर काइनेटिक कर रहे हैं तो टारगेट साइज़ बड़ा कर लें, और अगर स्टैटिक कर रहे हैं तो उसके थ्रेशोल्ड को ज़्यादा कर लें. कुछ ना कुछ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना विजुअल फील्ड डैमेज है. तो उसके बाद केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स फॉर पेरीमेट्री. ऑब्वियसली किसका करवाना है, किसकी डिस्क हेल्दी है, किसकी नहीं है, किस पे सस्पिशन है, किसका नहीं है. इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल. मॉनिटरिंग ऑफ ग्लोकोमा कैन ओनली बी डन बाय रिपीटेड ऑप्टिक डिस्क एवेलुएशंस एंड रेगुलर विजुअल फील्ड एग्जामिनेशंस. सो ये सारी चीज़ें करते हैं तो पेशेंट की मॉनिटरिंग चलती है, तो हमें पता रहता है कि उसका प्रोग्रेशन हो रही है या नहीं हो रही. मैं अपने सेटअप पे हर 2 महीने के बाद इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करता हूँ और हर 6 महीने के बाद विजुअल फील्ड और OCT कराता हूँ. ये बड़ा ही पेशेंट्स के लिए पैलेटेबल है. और अगर बीच बीच में मुझे बार बार बुलाना पड़े प्रेशर चेक करने के लिए, आई डोंट चार्ज द पेशेंट, बिकॉज उनको ये लगने लगता है कि डॉक्टर साहब शायद पैसों के लिए बार बार बुला रहे हैं और मेरे इलाज में इनको कोई दिलचस्पी नहीं है. तो जैसे कई दफ़ा होता है फेजिंग के लिए या किसी और काम के लिए आप बुलाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसिडर करें पेशेंट्स को की भी मेंटल हेल्थ को और उनकी साइकी को. तो उस तरह से पेशेंट आपके साथ अटैच रहता है और उसका इलाज चलता रहता है और उसके साथ उसको रिजल्ट्स अच्छे मिलते रहते हैं. तो विद दिस आई थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड अटेंशन, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस I will be very happy to answer. And then next talk is by Yusuf Jamal. He will be talking on some of the updates on visual field. Basic मैंने बता दिया, बाकी जी सर पहले तो आपको मुबारक. फील्ड और OCT फॉर ग्लाकोमा, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा चॉइस है हमारे लिए? दोनों करने हैं या इनमें से कोई? सर देखिए, कल भी मेरा लेक्चर था एक प्री पेरीमेट्रिक ग्लाकोमा पे. वो प्री पेरीमेट्रिक जो स्टेज है ना, कहा यह जाता है और हम सारे ये समझते हैं कि एक तो पेशेंट जो है ना वो 30-40% डैमेज होने के बाद विजुअल फील्ड चेंजेस आना शुरू होती हैं. जब OCT के अंदर रेड फ्लैग्स आना शुरू होते हैं ना, उस स्टेज के ऊपर विजुअल फील्ड में चेंजेस आना शुरू होती हैं. जब उसमें ग्रीन और येलो चल रहा होता है, कुछ एरियाज अफेक्ट हो रहे होते हैं OCT में इंटरप्रिटेशन में, तो वो डिटेक्ट नहीं हो सकते विजुअल फील्ड्स पे. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट तो दोनों ही हैं कि अगर आपने क्लिनिकली देखा है कि डिस्क सस्पिशियस है, फैमिली हिस्ट्री है, प्रेशर बॉर्डर लाइन है, आपको डिस्क हेल्दी नहीं लग रही, तो आप विजुअल फील्ड कराएंगे तो अर्ली स्टेज पे हो सकता है वो नॉर्मल आ जाए. तो यू शुड नॉट रेस्ट ऑन दैट, यू शुड गो फॉर OCT. बट विद एन एस्टेब्लिश्ड केस ऑफ ग्लोकोमा जिसमें डायग्नोज हो गया है, विजुअल फील्ड में भी चेंजेस आ गई, OCT में भी चेंजेस आ गई, फिर फॉलोअप के लिए आपको विजुअल फील्ड भी कराने हैं, OCT भी कराना है, क्योंकि OCT आपको स्ट्रक्चरल डैमेज बता रहा है और विजुअल फील्ड आपको फंक्शनल डैमेज बता रहा है. ठीक है ना. विजुअल फील्ड तो पेशेंट कर रहा है ना, मशीन उसको स्पॉट दिखाती है, पेशेंट बटन दबाता है, तो अगर उसको नज़र आएगा तो बटन दबाएगा ना. और OCT में स्ट्रक्चर का एनालिसिस हो रहा है, जिस तरह CT स्कैन होता है तो उसमें स्ट्रक्चर का एनालिसिस होता है, इस तरह ये OCT भी उसी किस्म का स्कैन है जो स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, फंक्शन के बारे में नहीं बताता.
जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये कि बाज़ औक़ात पेशेंट को 6/6 नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसकी डिस्क जो काफ़ी वो डैमेज हो चुकी होती है, तो इसके बारे में ज़रा प्लीज़ फिर से कहें, क्या कह रहे हैं? बाज़ औक़ात पेशेंट उसको जब वीओलोकेटी उसकी चेक करें तो वो 6/6 होती है, लेकिन जब उसका हम फंडस देखते हैं तो वो उसकी काफ़ी ऑप्टिक डिस्क कपिंग हो चुकी होती है, ठीक है ना? तो इसके बारे में सिर दर्द की कंप्लेंट के साथ आया है, आपने उसकी विजुअल एक्यूटी चेक की है तो वो 6/6 है, लेकिन आप उसका ऑटो रेफ करके देखिए आपने, या उसकी रेटिनोस्कोपी की है तो उसमें अच्छा खासा स्टिग्मेटिज्म है, ठीक है ना? अब वो सम हाउ अकोमोडेट करके अपने आप को मैनेज कर रहा है और 6/6 का बोर्ड उसने आपका पढ़ दिया है, ठीक है ना? बोर्ड पढ़ने में ये बात भी है कि हो सकता है कमरे की लेंथ ही 20 फीट ना हो, वो पहले ही कम फासला, इतने बड़े बड़े कमरे तो किसी के नहीं होते, कई लोगों ने शीशा भी नहीं लगाया होता, सिर्फ वो बोर्ड ही रखा होता है या कोई स्क्रीन लगाई होती है, तो इससे भी एरर्स आते हैं। इसी तरह डिस्क विजन, तो आपको पता है अगर सेंट्रल आइलैंड ऑफ विजन भी इतना सा भी रह गया है तो विजन हो सकता है उसकी 6/6 ही हो या 6/9 हो, लेकिन सारी पेरिफेरी उसकी सारी डैमेज हो गई होगी। तो इसलिए हैविंग अ विजन ऑफ 6/6 डज नॉट मीन दैट द पेशेंट विल नॉट हैव एनी चेंजेस इन ग्लाकोमा। तो ऑप्टिक डिस्क डैमेज का तो पता चलेगा विजुअल फील्ड एनालिसिस से और ओसीटी से। सर अर्ली डिटेक्शन के लिए जो मरीजों पे बेस करना चाहिए, आईओपी, फंडस, सर सबसे पहले तो हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी ड्रग्स की हिस्ट्री। अगर कोई स्किन डिजीज़ का पेशेंट है, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड्स पे चल रहा है तो उसको स्टीरॉयड रिस्पॉन्डर भी है तो उसका प्रेशर हाई होगा और रहेगा। तो ये सारी हिस्ट्री लें आप, उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन सारा करें, डिटेल से उसकी आँख को एग्जामिन करें, डायलेट करके प्यूपल उसकी डिस्क को असेस करें, नर्व फाइबर लेयर को देखें, उसके बाद फिर जो टेस्ट आपने करवाने हैं वो करवाएं। अर्ली स्टेज के लिए ओसीटी है और जब एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर दोनों। न्यूमेरिक स्केल है उसी ग्रेड का, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड्स, लेकिन बेसिकली तो वो सेंसिटिविटी इंडेक्सेस नहीं है, सेंसिटिविटी इंडेक्सेस है ना, ठीक हो। अच्छा बेसिकली तो सेंसिटिविटी है ना सर वो। अच्छा सर अगली चीज कि ये जो एक सपोज के -3 का मायोप है उसका हमने विजुअल फील्ड करवाना है, ठीक है ना, तो उसको बेसिकली अगर हम इसमें वो नहीं एंटर कर, नहीं सर अगर हम रिफ्रैक्टिव एरर नहीं डालते उसको ग्लासेस के साथ कर देते हैं, अब अगर एक प्रेस बायोप पेशेंट है, प्रेस बायोप है, लेकिन इस तरह उसमें सर बाज़ औक़ात हमने ये देखा है कि उसमें फिर अगर उसे ग्लासेस पे नहीं है ना, ठीक है ना, तो वो डिफरेंट आ रहा होता है जो बगैर ग्लासेस के। मसलन एक प्रेस बायोप था, ग्लास का रिम वो फिर वही होगा सर, रिमलेस फिर उसमें वो जो सर आप रिमलेस शीशे भी तोड़ते हैं सर ट्रायल बॉक्स के अंदर जो शीशे रिम के बगैर वाले भी होते हैं। सर आपका क्वेश्चन क्या है सर? यानी मैं सर समझ गया कि अगर वो रिमलेस हमारे पास नहीं है तो हम सिर्फ एंटर कर दे उसके अंदर कि इतना इसको रिफ्लेक्ट। Thank you everyone. I am Dr. Yusuf Jamal and currently working as Associate Professor of Glaucoma and Head of Department of Ophthalmology, HMC, KGMC. तो सर ने मेरा काम काफ़ी आसान किया है, बेसिक्स उन्होंने पढ़ा दी, बता दी। I will just be talking on updates, but before talking on updates, can anyone tell me कि सबसे पहले विजुअल फील्ड्स किसने डिस्क्राइब की या किसने ये कॉन्सेप्ट बताया कि देयर इज़ समथिंग लाइक विजुअल फील्ड्स? किसी को कोई आइडिया? बिकॉज हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ विजुअल फील्ड्स, सो लेट्स talk about the history of visual fields. So Hippocrates, he was the first one जिसने 5th century BC में visual field को defect को record किया. He recorded the first visual field defect. फिर उसके बाद Ptolemy, he was the first one जिसने actually quantify किया कि visual field कितना होता है और ये एक circular form में है visual field. So it was Ptolemy in 150 BC. Then Galen, he worked on the extramacular fields. First time he described this in 216 AD. And Mariotti जो था, he was the first one जिसने blind spot को detect किया और उसने इसको relate भी किया कि this physiological blind spot is basically because of
optic disc. So after that, what happened? Thomas Young, he was the first one जिसने exact measurement की of visual field in 1801. And then Purkinje, जिसका हमने नाम काफ़ी सुना है, Purkinje images, he refined Young's work in 1825. फिर क्या हुआ? स्कोटोमा की अपनी हिस्ट्री है. Soborov, he first described scotomas in 1708. एंड जोसेफ बियर, जिसने ये डिफरेंट स्कोटोमा थे, सेंट्रल, पैरासेंट्रल, हेमीफील्ड लॉस, कंस्ट्रक्शन ऑफ विजुअल फील्ड, ये फर्स्ट टाइम इसने डिस्क्राइब किए. फिर डेमेरिस था जिसने फर्स्ट टाइम विजुअल फील्ड लॉस को डिस्क्राइब किया इन रेटिनल डिटैचमेंट. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ स्कोटोमा, ये कैसे इवॉल्व हुआ. देन कम्स द इंट्रोडक्शन ऑफ पेरीमेट्री इन मेडिसिन. सो आई थिंक अगर ये वॉनग्राफी ना होता तो शायद ऑफ्थल्मोलॉजी में बहुत से काम अधूरे रह चुके होते, वो अभी तक हम न समझ रहे होते. सो ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने एक्चुअल बुक पब्लिश की इन एट द एज ऑफ 28 इन 1855, दैट द एग्जामिनेशन ऑफ, इसके नाम से द एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल फंक्शंस इन एब्लायोपिक अफेक्शंस. एंड ही वॉज द फर्स्ट वन who suggested that homonymous hemianopias were caused by the unilateral cerebral problems एंड द बायलेटरल जो हेटेरोनामस हेमिनोपियाज हैं, ये मिड ब्रेन में कोई लीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है. फिर ऑबर्ट एंड फॉरेस्टर, उसने आर्क जो पेरीमीटर था, ये मेरे ख्याल में इसके शागिर्दों में से थे जिन्होंने ये प्रेजेंट किया. फिर एज ऑफ आइसॉप्टर आया. एंड जेरम्स, जिसका सर ने भी जिक्र किया, इन 1889 उसने फर्स्ट टाइम मैप किया द सैटेलिटीज ऑफ सेंट्रल 30 डिग्री, जिसको हम जेरम एरिया बोलते हैं, जो सेंट्रल 10 to 20 डिग्रीज ऑफ विजुअल फील्ड है. ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये एरिया डिस्क्राइब किया. फिर उसके असिस्टेंट थे हेनिंग रॉन. ही यूज डिफरेंट साइजेज ऑफ टारगेट्स, जिसने मल्टीपल आइसॉप्टर्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए, उसके शेप और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, वो उसने विजुअल सेंसिटिविटी मैप पे उसने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किए. फिर आया एज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन in 1945. I think ग्लाकोमा वालों को पता होना चाहिए who is he. Hans Goldmann. So he from Bern, he was the first one जिसने हेमिस्फेयर बॉल बनाया. फिर इसके प्रोजेक्टर्स इसमें बनाए, इसमें टारगेट्स बनाए, इल्यूमिनेशन बनाया, रेटिनल एडाप्टेशन, ये सारा सिस्टम जो है इसने बनाया जो प्रिसाइजली कंट्रोल किया जा सकता था. सो ही वॉज द फर्स्ट वन. दिस वॉज द एज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जब स्टैंडर्ड बन गया कि दिस इज नाउ हाउ पेरीमेट्री शुड बी डन. Then came the age of automation, कि अब ऑटोमेटेड पेरीमेट्री पे बात गई. तब तक मैनुअल हो रहा था सब कुछ, अब ऑटोमेटेड पे गई. और इसमें क्रेडिट जाता है किसको? जॉन लिन को, फ्रांस फैंग हाउसर, ये वो लोग हैं, एंड एंड्रे हेल. ये पहले 3 जो बंदे हैं, इसमें जो फर्स्ट 2 हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑक्टोपस में काम किया. एंड्रे हेल और जो बाकी 3 हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हम्फ्री में काम किया. एंड देन ऑटोमेटेड पेरीमेट्री ये जब शुरू हुई, उसके बाद ये चल रही है और एडवांस हो रही है. और यही है कि अब ये एक स्टैंडर्ड बन गया कि स्टैंडर्ड ऑटोमेटेड पेरीमेट्री. तो अर्ली जो 1980s था, उसमें क्या था? थ्रेशोल्ड टेस्ट होते थे जो अबाउट 12 to 20 मिनट्स पर आई लेते थे. फिर लेट 1980s में सीटा प्रोग्राम आया जो इन लोगों ने बनाया. ये आंद्रे हेल ने, ये स्वीडिश है, इन्होंने बनाया स्वीडिश इंटरेक्टिव थ्रेशोल्डिंग एल्गोरिदम, जिसकी वजह से टेस्टिंग टाइम ऑलमोस्ट 50% तक कम हो गया. ये लेट 1980s में आ गया. लेकिन देयर इज़ ऑलवेज नीड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट बिकॉज वी नीड मोर फ्रीक्वेंट टेस्टिंग इन ग्लाकोमा. एंड जब हम ज़्यादा फ्रीक्वेंट टेस्टिंग करते हैं, वी वांट कि लेस टेस्टिंग टाइम हो, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव टेस्ट है. एंड देयर शुड बी लेस टेस्ट रीटेस्ट फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस, ताकि कोई हमें उससे कंक्लूजन मिले कि ये टेस्ट कितना रिलायबल है. और फिर एक और चीज़ आई, जिस तरह सर ने पूछा कि हमें अर्ली फील्ड में अर्ली ग्लाकोमा में विजुअल फील्ड करना चाहिए कि OCT करना चाहिए. तो फिर ये एक आइडिया आया कि बाज़ ग्लाकोमाज ऐसी हैं कि जिसमें फ़र्स्ट प्रॉब्लम जो है वो सेंट्रल से शुरू होती है. हम ट्रेडिशनली ये सीखते हैं कि इन ग्लाकोमा पेरिफेरी से विजुअल फील्ड लॉस होना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेंटर में आता है. लेकिन बाज़ ग्लाकोमा बाज़ वक़्त ऐसी होती है, लाइक स्पेशली नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा, जिसमें सेंट्रल इन्वॉल्व होता है और आपको OCT पे शायद कुछ ना मिले, वो आपको विजुअल फील्ड पे फिर मिलता है. तो ये ज़रूरतें थी जिसके लिए
काम हो रहा है और होता रहा, तो उस पे क्या हुआ, व्हाट आर द न्यूअर प्रोग्राम्स. सो माय दिस टॉपिक इज मेनली द अपडेट्स ऑन हम्फ्री विजुअल फील्ड पैरामीटर, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यही यूज़ हो रहा है हमारे सेटअप्स में. सो 2 न्यू प्रोग्राम्स इन हम्फ्री, जो उनका हम्फ्री HFA3 है. इसमें उन्होंने 2 प्रोग्राम्स किए हैं. एक जो है प्रोग्राम है सीटा फास्टर, और एक ग्रेड पैटर्न को उन्होंने इम्प्रूव किया 24-2C. 24-2 से सारे वाकिफ़ हैं. C, व्हाट डज दिस मीन? C इज सेंट्रल, जो सेंट्रल जो 10 डिग्रीज है उसमें इसको टेस्ट करने हैं. सो व्हाट इज सीटा फास्टर? ना अगर आप ट्रेडिशनली देखें, जो सीटा स्टैंडर्ड था 24-2, देन सीटा फास्ट एंड सीटा फास्टर. ट्रेडिशनली सीटा स्टैंडर्ड 24-2 इट takes about 6 to 8 minutes each eye. Sita fast about 4 to 6 minutes लेता है. Sita faster about 2 to 3 minutes, 2 to 4 minutes maximum per eye लेता है. So what is Sita faster? It exactly tests the same 54 location जो 24-2 में होते हैं, लेकिन इसकी टेस्टिंग टाइम जो है वो उसको इम्प्रूव किया गया है, ये उससे भी ज़्यादा है. और जब ये इम्प्रूव होता है, फास्ट हो जाता है, तो जहन में क्वेश्चन आता है कि इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसकी एग्रीमेंट विद द स्टैंडर्ड कितना है. तो जब इनको टेस्ट किया गया, जो रिसर्चेज हुई, तो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक द 2 ओरिजिनल सीटा स्ट्रेटजीज, लाइक द स्टैंडर्ड एंड द फास्ट. सो ये 2019 में इन्होंने स्टडी पब्लिश की. वही आंद्रे हिल हैं जो ये हम्फ्री पे काम करते हैं. उन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की, मल्टी सेंटर्ड थी. इसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रेजेंट किया, ये एल्गोरिदम, कि द न्यू सीटा पैरामीट्रिक थ्रेशोल्डिंग टेस्टिंग एल्गोरिदम, ये इन्होंने किया और इन्होंने पब्लिश किया अमेरिकन जर्नल में. तो व्हाट दे डिड, इन्होंने कंपेयर किया सीटा फास्ट एंड सीटा फास्टर को. ये मीन डिविएशन पे भी इन्होंने कंपेयर किया और फिर विजुअल फील्ड इंडेक्स पे भी कंपेयर किया, कि जब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में कितना एग्रीमेंट है, कितना डिफरेंस आता है. तो जो मीन डिविएशन में डिफरेंस आ रहा था वो हार्डली 0.06 तक आ रहा था दोनों में, और जो विजुअल फील्ड इंडेक्स में आ रहा था वो -0.1 तक. सो दे कंक्लूडेड कि इन दोनों में एग्रीमेंट बहुत अच्छा है, देयर इज़ नो वेरिएशन, बट द टेस्टिंग टाइम इज़ अबाउट 30 to 50% रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू द सीटा फास्ट. नाउ ये दिस टेबल इन्होंने फिर तीनों को कंपेयर किया, सीटा फास्टर, सीटा फास्ट एंड सीटा स्टैंडर्ड को, कि स्टैंडर्ड के साथ कौन कितना जो है एग्रीमेंट में है. सो इन ऑल पैरामीटर्स जो आपके ग्लाकोमा हेमीफील्ड टेस्ट के थे मेनली, उनको उन्होंने किया. उन ऑल पैरामीटर्स में ये सीटा फास्टर जो था वो सीटा स्टैंडर्ड के साथ क्वाइट क्लोज जा रहा है. सो इनकी फिर कंक्लूजन ये थी कि इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम और इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड. Then improvement in the grid pattern 24-2C. C is the central 10 degrees. इसको उन्होंने इंटरप्रेट किया. सो बाद स्टडीज़ ये कहती हैं, जिस तरह भी हमने कहा, कि some studies suggested that it is not necessarily that in glaucoma the field defect should start from the periphery. Sometimes it is from the center. और जब आप रूटीन के 24-2 कर रहे हैं उसमें वो मिस हो जाता है. तो उन्होंने जब ये किया, और वो जब आप 10-2 करते हैं तो उसमें वो आपको मिल जाता है. तो उन्होंने कोशिश ये की कि इस 10-2 को 24-2 में मर्ज किया जाए. तो 10-2 में जो वो पॉइंट्स थे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिटेक्ट हो रहे थे ग्लाकोमा वालों में, उन्होंने उन पैटर्न को, उन पॉइंट्स को लिया, और वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो एसिमेट्रिकल हैं. वो इस एक सी शेप बनाते हैं, कोई 10 पॉइंट्स हैं. तो उसमें उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया, एंड इट इज़ अवेलेबल ओनली इन सीटा फास्टर प्रोग्राम. सीटा स्टैंडर्ड या सीटा फास्ट में नहीं है. तो वो कैसा नज़र आता है, यू कैन सी, ये आपको ये एक सी शेप नज़र आ रहेगा. ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ये अब यहाँ से शुरू होता है -14, 14, 10 सी, ये एक सी शेप बनाता है. दीज आर, और अगर आप देखें तो ये उन्होंने बताया भी है कि बाकी सारा पैटर्न डिफेक्ट जो है कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इस सी एरिया में जो है आपका डिफेक्ट आ रहा है. एंड दी ग्लाकोमा हेमीफील्ड टेस्ट, इट इज़ आउटसाइड द नॉर्मल लिमिट्स. सो दिस इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यूअर हम्फ्रीज जो HFA3 हैं और जिसमें सीटा फास्टर है. फिर इन्होंने वही किया कि दे वांटेड टू नो कि ये कितना रिलायबल है, इज़ इट सुपीरियर, इज़ इट सेम, और इज़ इट इन्फीरियर टू द ओरिजिनल 24-2 ग्रेड जो पैटर्न है इन
टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल डिफेक्ट्स जो ग्लोकोमा की रिलेटेड हैं, एंड स्ट्रक्चर फंक्शनल कॉरेस्पॉन्डेंस वो उन्होंने ग्लोकोमा एंड सस्पेक्ट्स में चेक की. So what was their conclusion? That the 24-2C जो है that returned global visual field indices similar to the 24-2 grid, but tended to identify more clusters of central functional defects. Central structure function concordance was better achieved using the 24-2C grid. तो उन्होंने फिर ये conclude किया कि this is better and इसको अडॉप्ट करना चाहिए, स्पेशली इन दोज केसेस जब आपको लगता है कि कपिंग भी है, न CT पे कुछ आ रहा है, न रेगुलर 24-2 पे कुछ आ रहा है. तो उन्होंने कहा कि आप 24-2C पैटर्न फिर उनको ज़रूर चेक किया करें. सो दिस वाज देयर कंक्लूजन. So conclusion of my talk is that these two programs, actually program is one, the other is change in the grid pattern. CETA faster and 24-2, these are useful additions in Humphrey strategies. Advantages क्या हैं? Shorter testing time है and similar results हैं, test retest fluctuations इसमें कम हैं. However, long term use will decide about its acceptability. Now long term use, I am using the CETA faster for about 4-5 years हम यूज़ कर रहे हैं 2020 से. तो अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन यही है कि स्टैंडर्ड और फास्टर ये सेम है. लेकिन 24-2C हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक उन केसेस में यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें सस्पेशन लेवल ज़्यादा होता है, OCT विजुअल फील्ड नॉर्मल होती है, तो उसमें फिर हम इसको यूज़ करते हैं. सो हाउ लॉन्ग टर्म यूज़ विल डिसाइड इट्स एक्सेप्टेबिलिटी कि ये कैसा जाता है. एंड विद दिस आई कंक्लूड माई टॉक. थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन. एनी क्वेश्चंस? फ्री पे मैंने भी एक जो है ना रिफर्बिश हम फ्री लिया. कौन सी मशीन जो है ना एट प्रेजेंट जो है ना रिलायबल और अच्छी जी हम फ्री क्यों नहीं मिल रही सर? नहीं मिल रही है. वो जो है ना इतना पॉपुलर ऑक्टोपस मिल रही है, और दूसरी विजुअल फील्ड जो है ना जो दूसरी विजुअल फील्ड एनालाइजर मिल रहे हैं, हम फ्री इतनी पुरानी मिल रही. महंगी होगी वो अलग बात है, मिल तो रही है, मुझे तो नहीं पता सर. आपको पता है? न्यू जो सर बताएंगे. हमने तो न्यू ही लिया है और हमने गवर्नमेंट सेटअप में लिया. मुझे नहीं पता मैं, क्योंकि बिकॉज द न्यू Humphrey is now incorporating the 24-2C. हाँ. We just acquired it about 6 months ago, you know. ठीक है. हाँ. मिल तो रही है. इन्होंने सर ने 6 months पहले लिया है, हमने तकरीबन 4-5 years पहले लिया है. हम फ्री मिल रहा है सर. लेकिन आप लोग अगर रिफर्बिश्ड की बात कर रहे हैं ना, जो सेकंड हैंड है, उसमें तो नहीं मिल रहा है क्योंकि वो HFA2 हैं. HFA3 अभी तक भी न्यू में ही आ रहे हैं. हाँ वो जो हैं वो फिर HFA1 और 2 हैं, और HFA1 में तो VFI भी नहीं आ रहा है. Okay, Yusuf, my question is that, you know, we are doing 24-2C. जी सर. But the overall consensus I see in the glaucoma specialist is that you are still missing the problems in the central 10 degrees. So the advice is that you still do 10-2 because the points you are scoring is 6 degrees apart. पॉइंट्स में ज़्यादा हो जाते हैं. 10-2 जो है ना उसमें वो 2 डिग्रीज का फर्क है ना, तो आप मिस नहीं करते, पॉइंट करते हैं. बिल्कुल सर. तो हम नई मशीन तो ले ली, 2C भी करते हैं, लेकिन इस टाइम समटाइम यू नो पीपल हु गॉट वेरी progressive or advanced glaucoma, we still fall on the 10-2C. HFA3 में सर all people, you know, 10-2 में उसमें ज़्यादा लगता है सर, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं. उसमें कोई 7 in 10 degrees. 68 so टाइम है उसमें 10-15 मिनट लगते हैं. HFA3 में सर जो एडवांटेज है, जो हम जिसको हम ज़्यादा ले रहे हैं, एक सीटा फास्टर का ले रहे हैं, बहुत जल्दी हो रहा है. दूसरा जो ये लेंस की बात अभी हो रही थी, उसके साथ अपना लेंस आता है, क्रिस्टल LED स्क्रीन टाइप आती है. उसमें जब आप रिफ्रैक्टिव एरर पुट करते हैं, वो खुद ही अपनी रिफ्रैक्टिव एरर सेट कर देता है. उसके लिए आप एक्स्ट्रा लेंस नहीं डालते हैं, उसका अपना एक ग्लास होता है, वो खुद क्रिस्टल चेंज हो जाता है. तो ये उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, और ये रिम इफेक्ट्स वगैरह ये चीज़ें फिर नहीं आती हैं. थैंक यू. So would you like to explain कि विजुअल फील्ड एनालिसिस की एप्लीकेशन कहाँ पे आती है और OCT की इन अर्ली ग्लाकोमा एंड मॉडरेट ग्लाकोमा में? हाँ सर. यूजुअली तो अभी हम ये इस तरह ही कर रहे हैं कि अगर ग्लाकोमा की सस्पिशन है तो हम ये विजुअल फील्ड OCTs दोनों ही करवाते हैं. लेकिन अगर अर्ली चेंजेस होंगे वो OCT ही पिक करता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल डैमेज पहले आ जाता है, और विजुअल फील्ड
वो तकरीबन 40 to 50% जब आपका लॉस हो जाता है स्ट्रक्चर, तब जाके विजुअल फील्ड पे उसके चेंजेस आते हैं। लेकिन हम करते दोनों इकट्ठे हैं। हाँ, जब एडवांस चला जाता है जिसमें फ्लोर इफेक्ट आ जाता है, फिर हम OCT छोड़ देते हैं, फिर हम सिर्फ विजुअल फील्ड पे उसको फॉलो अप करते हैं। Do you think in preperimetric glaucoma and glaucoma suspect and early glaucoma we should go for OCT? OCT चाहिए, वो तो मस्ट है सर, उसमें ज़रूर करना चाहिए। Okay, so let me ask, Yusuf is there and I see अभी हुमा है, चली गई। तो प्रॉब्लम ये होता है that we have some patient that we understand, you know, कि you got 40-50% RNFL loss before you see the changes in the visual field। अब प्रॉब्लम ये होती है कि उन पेशेंट का जो OCT होता है वो नॉर्मल होता है, फील्ड डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर हम उनको दोबारा वापस भेजते हैं कि दोबारा करो, फिर वही आ जाता है। Now these are the cases which tickle our mind and we have no idea how to answer that, because you अभी आप बात कर रहे हैं कि कोई अभी है, but I'm sure you will also see those patients, बिल्कुल। फील्ड चेंज आती हैं, OCT नॉर्मल होती है, हमें कुछ नहीं पता चलता कि ये क्यों हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो नया पेशेंट आता है उसको हम चाहे कितना भी हो OCT के साथ विजुअल फील्ड हमेशा करते हैं, because we just want to pick anything। So there's a lot of things going on जो हमारी समझ से अभी तक बालतर है, लेकिन ये कि we still try to work it out right happens। Do you have any answer? यही है कि OCT एंड विजुअल फील्ड वी हैव टू डू, और उसको फिर फॉलोअप पे ही रख सकते हैं। नहीं सर, ऐसा सच तो इस तरह कुछ नहीं है, लेकिन जब भी आपको सस्पिशन हो क्लिनिकल तो आपने करना है, वो अब आपकी सस्पिशन लेवल पे आता है। जी सर। अच्छा सर, ये इस तरह है कि सर ये पहले -1 और -2। -1 वो था जब ये आपके विजुअल फील्ड में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, तो ये -1 वो रिप्रेजेंट करता है कि एग्जैक्ट इस मेरिडियन को टेस्ट किया जाए। तो इसमें प्रॉब्लम फिर ये आ रही थी कि इसमें ये कन्फ्यूजन बढ़ रही थी कि ये जो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो ये ग्लाकोमा के डैमेजेस हैं या नहीं है, क्योंकि वी नो कि ग्लाकोमा हेमीफील्ड्स को रिस्पेक्ट करता है, वर्टिकल में लाइन क्रॉस करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल को नहीं करता है। तो इसलिए उन्होंने -2 को इनकॉर्पोरेट किया। अब वही यूज़ हो रहा है जिसमें उन्होंने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे टेस्ट नहीं करते हैं, उसके 3 डिग्री अबव एंड 3 डिग्री बिलो, 3 डिग्री राइट एंड लेफ्ट उसको टेस्ट करते हैं, ताकि एग्जैक्ट पता लगे कि ये मेरिडियंस के आगे पीछे ऊपर नीचे कितना जो है इसका डिफेक्ट आ रहा है। सो विद दैट वी नो कि वेदर दिस इज़ बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल और ग्लाकोमेटस डैमेज, इसलिए -2 है। मेरा पार्टिसिपेंट के साथ एक क्वेश्चन है कि व्हेन वी टॉक ऑफ द न्यूरो प्रोटेक्शन, आप में से किसी ने ऐसा देखा है कभी विजुअल फील्ड रिवर्स हुए हों कि देयर हैव बीन चेंज इन द विजुअल फील्ड्स, और जिस तरह रेटिनल गैंग्लियन सेल्स इस्कीमिक होते हैं, आपकी परफियन दोबारा इंक्रीज हो गई और उसके बाद देयर वाज रिवर्सल ऑफ विजुअल फील्ड्स। एनीवन? मैंने देखे हैं, लेकिन ग्लूकोमा में नहीं देखे, पिट्यूटरी ट्यूमर्स में देखे हैं मैंने। पेशेंट हैज गॉट पार्टिकुलर कंप्रेशन आपने हटा दी तो चेंज, ग्लूकोमा में नहीं देखे। बच्चों में तो 2-3 साल के बच्चे को कौन फील करा, 3 इयर्स का concept ये है because you know the eyeball is stretched, so you're giving big one, but once the pressure is reduced, the eyeball goes down, so that's the reason you see the changes in the children. But the adults में glaucoma में एक आ जाए तो नहीं आता. But you look at glaucoma is totally different from the compressive optic neuropathy, so not both of the changes. तो compressive में ये होता है कि आपने change डाल दिया, आपने ट्यूमर निकाल दिया, vascular supply restore कर दिया, then you can see certain change in the disc. Glaucoma difficult. Reverse हो जाता है. गति नहीं है, लेकिन रिवर्स हो जाती है तो I think Thanks sir, thank you. मुझे अपना ईमेल भेजिए, Masood? मैंने 2 आर्टिकल्स भेजे थे ना। I think we are talking here of very idealistic situations. It is said that it is the perimetrist who does the field, not the machine. ठीक है सर, So ठीक है सर। हम अगर उसके जो मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। indices हैं उसको सही तरह अगर देखें तो there are so many things that you can figure out कि ये फील्ड सही भी हुआ कि नहीं।
अगर वो फील्ड सही नहीं हुआ और उसमें फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव और उसमें मिस उसने किए हैं तो वो फील्ड वैलिड नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो इंडिसेस देखने चाहिए कि उसकी एज सही फीड हुई भी है, उसके जो पेशेंट ने कितने नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव किए, तो उसको भी देखना होता है कि पेशेंट की एजुकेशन लेवल क्या है, उसके बाद हम इवेल्यूएट करें विजुअल फील्ड को। एंड दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री, विजुअल फील्ड और ओसीटी। कई बार उनकी दोनों की फाइंडिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त। एंड इवन एट दिस स्टेज ऑफ आवर लाइफ इन प्रैक्टिस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि इस पेशेंट को ग्लोकोमा है या नहीं है। I always wait and I always ask for another opinion maybe or a neurological opinion. आज जो इंटरेस्टिंग केस का हमारा है आफ्टरनून में, उसमें the cases that I am going to show you they're all related to neurological cases versus glaucoma. तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल और एज और अल्जाइमर ये बहुत सारी चीज़ें विच आर प्लेइंग, एकदम फैसला नहीं कर देना चाहिए विजुअल फील्ड को देख के। जी जी फिर आप यू हैव टू यूज जी नहीं, कंसंट्रेशन की वैल्यू ग्लोकोमा में बहुत कम है। मे बी न्यूरोलॉजिकल डिजीज में हो या बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया में हो, या वो बड़ा मुश्किल है, उसको करना भी मुश्किल है, पेशेंट को से करवाना भी बहुत, और जितना उसका एजुकेशन लेवल होगा वो नहीं कभी आपके तरफ देखेगा, वो इधर उधर देखेगा, इट्स डिफिकल्ट। फिर आप अपनी डिस्क के ऊपर तवज्जो दें।